Good morning, everyone. This is Saraswati Devi here, welcoming you all to the science class. So, students, today we are going to continue our chapter 7. This is the second part of the chapter Weather, Climate, and Adaptation of Animals to Climate. Now, so far in the last video, we have covered the topic weather and climate. We have learnt about what is the weather and what are the elements of weather and what is climate. So, we often confuse the word climate and weather as synonyms. But in our last class, we studied that weather and climate are not synonyms, whereas weather is actually the atmospheric condition of a place at a particular time, whereas climate, it is the average, or we can say the overall weather of a place on a long period of time, over a long period of time. So this is what we learned in our last class about weather and climate. Now in today's class we will be learning about adaptation of animals to climate. Now different regions have different climatic conditions, and due to different climate, the animals living in those regions have certain features in them, and how they adapt to that different climate we will learn in today's class. Now topics to be covered today are climate and adaptation. How the climate is responsible for the adaptation of animals in animals. Next is what is adaptation we'll learn, and today we will learn about the polar regions and adaptation of animals of polar regions, tropical rainforest and adaptation of animals of these tropical rainforest. So let's begin our class. Climate and adaptation. As I said, different regions have different climate, different place have different climate, and the climate of a place affects the living organism of that area. उस एरिया में जो भी organisms, living organisms हैं, उनकी लाइफ में भी वो क्लाइमेट का कुछ इफेक्ट होता है, राइट? तो these animals living in a particular region adapt themselves so that they can survive the weather condition of that place. So जो क्लाइमेट है वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें कुछ इफ़ेक्ट करता है. सो ये जो एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में रहते हैं, ये अपने आप में इनमें कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं, ये कुछ फीचर्स होते हैं जिनके वजह से वो ईजिली उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं. द फीचर्स एंड हैबिट ऑफ एनिमल स्टार्ट टू चेंज एज पर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. क्योंकि उन्हें उस क्लाइमेट में सर्वाइव करना है तो उनके फीचर्स और उनके हैबिट में चेंजेस आने लगता है क्लाइमेट के साथ साथ, ताकि वो उस जगह पे सर्वाइव कर सके. नाउ व्हाट इज़ दिस अडेप्टेशन? The ability of an organism to develop certain features which improve the chances of its survival in the environment in which they live is known as adaptation. So in simple words we can say कि किसी भी क्लाइमेटिक रीजन, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी रीजन में जो एनिमल्स रह रहे हैं उनमें कुछ ऐसे फीचर्स आने लगते हैं, फीचर्स आते हैं या चेंजेस हो जाते हैं जिसके वजह से वो उसमें सरवाइव कर सके. मेनली किसी भी क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए जो फीचर उनमें आते हैं या जो फीचर्स वो अडेप्ट कर लेते हैं, जो हैबिट्स वो अडेप्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं अडेप्टेशन. So it is actually the ability of organism to develop certain features which improve their chances of survival in that environment. उस environment में survive करने के लिए जो features चाहिए होते हैं, जो features वो develop कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम adaptation. Now next, so today we will focus on polar regions. So you all have heard about polar regions. The area of the earth that surrounds the north pole and the south pole is known as polar regions. सो जो अर्थ होता है उसके जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ की जो एरिया होती है इसको हम कहते हैं पोलार रीजन. ओके, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ये कैसा होता है? जो पोलार रीजन्स होते हैं इनका क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. पूरे साल में वो वहाँ पर ठंडा ही रहता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा
स्नोफॉल होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है। अभी इतने ठंडे क्लाइमेट में सरवाइव करना है तो वहाँ के जो वहाँ भी कुछ एनिमल्स होंगे तो उनके बॉडी में उनमें कुछ ऐसे फीचर्स होंगे ताकि वो इतने ठंडे क्लाइमेट में सरवाइव कर सके। तो वो फीचर्स क्या है, वो एनिमल्स क्या हैं, हम वो भी देखेंगे इसमें। हाउ एनिमल्स अडेप्ट टू सच एन एक्सट्रीमली कोल्ड climate. Okay, now what, the sun does not rise for 6 months of the year in the polar region. मतलब वहाँ पर 6 महीने तक तो सनराइज होता ही नहीं है। दैट मीन्स वहाँ पर जो सनराइज है सिर्फ एक बार होता है, इट राइजेस आफ्टर 6 months। तो वहाँ 6 मंथ के बाद सनराइज होता है, यानी कि कहने का मतलब हो गया एट द पोल्स द सन only rises and sets once a year। एक साल में it rises and sets once in a year। The sun does not rise for 6 months of the year in the polar region and then it stays up for the next 6 months। तो 6 मंथ तक तो उगता ही नहीं है जो, और 6 मंथ वहाँ पर सनराइज रहता है। मतलब कि सनराइज यहाँ पर सिर्फ एक बार ही होता है पूरे साल में। अब यहाँ का टेम्परेचर कितना है, द टेम्परेचर इन द पोलर रीजन कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस, कितना कम टेम्परेचर होता है वहाँ पर। Now, what are the animals which are found in these regions? The most common animals which are found in these regions are polar bears and penguins। पोला बेयर्स एंड पेंगुइन्स, इन दोनों के बारे में आपने सुना होगा बट आप लोगों ने देखा नहीं होगा। आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल्स या एनिमल प्लैनेट्स में देखा होगा पोला बेयर्स कैसे होते हैं, पेंगुइन्स कैसे होते हैं, बट आपने रियल में नहीं देखा होगा क्योंकि दे आर फाउंड इन द पोलर रीजन्स। अदर एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन द पोलर रीजन्स आर, वहाँ पर फिशेस भी होती हैं, बर्ड्स भी होते हैं, ऑक्सेंस भी होते हैं, मस्क भी होते हैं, रेनडियर्स भी होते हैं, फॉक्स, वेल्स एंड सील्स। These are the some other animals other than polar bears and penguins। These are the few animals which are found in the polar regions। Now they have adapted themselves so that they can survive easily in these places। तो ये जो एनिमल्स हैं इन्होंने अपने आप को उनके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि ये लोग इतने बहुत ही ईजली उस जो क्लाइमेट है उसमें सरवाइव कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर द प्लेसेस, ये पोलर रीजन्स में कौन कौन सी प्लेसेस आ रही हैं, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। These are the some of the cold regions। The animals which are found, you can see the pictures of animals which are found in the polar regions are leopard seal, penguins, arctic wolf, walrus, arctic fox, polar bear। So mostly जो भी आप यहाँ पर animals देख रहे हैं, ये पोलर बेयर देख लीजिए, ये वाइट कलर का है, पेंगुइन्स वाइट, आर्टिक फॉक्स वाइट, आर्टिक वुल्फ वाइट, ये पूरे स्नोई एरिया में रहते हैं पोलर एनिमल्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट पोलर बेयर, हाउ दिस पोलर बेयर हैज अडेप्टेड, हाउ इट इज एबल टू सर्वाइव इन सच अ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। सो ये पोलर बेयर में द पोलर बेयर्स हैव वाइट फर which makes it easier for them to hide in the snow and therefore safe from the predator। ये जो पोलर बेयर्स होते हैं ये इनका जो फर होता है वो वाइट कलर का होता है, तो इसके वजह से इनके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है उस स्नो में छुप जाना। लाइक स्नो बैकग्राउंड स्नो, वहाँ पर सिर्फ स्नो है और पोलर बेयर भी वाइट है, तो उनको देखना, उनको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर देम टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर। In the same way it makes it easier for them to catch the prey। So जब वो अपने आप को ईजिली हाइड कर लेते तो प्रे को भी नहीं पता होगा कि वहाँ पर पोलर बेयर है, तो वो ईजिली जो है अपना जो खाना है या जो अपना शिकार है उसको वो ईजिली वो पकड़ सकते हैं। The polar bears have 2 layers of thick fur on them so that they can survive extremely cold condition। So उनका जो ये वाइट फर है वो उनको क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, it helps them to hide in the snow, to save themselves from the predator and also to catch their prey। Similarly, और उनकी बॉडी में जो ये फर होता है, उनकी बॉडी में थिक फर होता है और इसके 2 लेयर होते हैं ताकि वो जो है इतने ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में ईजिली सर्वाइव कर सके।
The polar bear moves slowly and rest a lot so that they do not get overheated because of their thick fur. ये जो उनका thick fur होता है वो उनकी बॉडी में हीट रखने के लिए होता है, ताकि उनकी बॉडी हीटेड रहे, उनको ठंड ना लगे। तो वो बहुत स्लोली चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेते हैं, ताकि जो ये थिक फर के वजह से उनकी बॉडी जो है ओवर हीटेड ना हो जाए, ज़्यादा हीटेड ना हो जाए। द पोलर बेयर ऑफन स्विम ऑन वार्म डेज टू कीप देमसेल्फ कूल। ये जो इनका फर होता है ना, ये इनको बहुत गर्म रखता है। तो जब गर्मी का मौसम होता है वहाँ पर, वार्म डेज जो होते हैं, गर्म डेज जो होते हैं वहाँ पर, उन टाइम पे ये पोलर बेयर्स जो है स्विम करते हैं ताकि ये खुद को ठंडा रख सके। The paws of the polar bear are large and wide so that it can swim as well as walk easily in the snow. So snow में चलना स्टूडेंट्स बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो आप जल्दी थक जाते हैं। जब आप कभी किसी हिली एरिया पे आप कभी हिल स्टेशन में गए हो जहाँ पर स्नोफॉल हो रहा हो, लाइक कश्मीर एंड ऑल, अगर आप वहाँ पर गए हैं और आप अभी स्नो में कभी चले हैं तो आपको पता चलेगा इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द स्नो। सो ये जो पोलर बेयर्स होते हैं, इनके जो पॉस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं और वाइड होते हैं, ताकि वो ईजिली वॉक कर सकें और ईजिली स्विम भी कर सकते हैं। पोलर बेयर स्विम भी करते हैं, राइट? तो उनके स्विमिंग और वॉकिंग में ये पॉस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, लार्ज एंड वाइड होते हैं, जिसके वजह से वो ईजिली स्विम कर सकते हैं एंड वॉक कर सकते हैं। द पोलर बेयर कैन स्विम अंडर वाटर एज वेल बिकॉज it can keep its nostril closed for a long time. So polar bear walk तो कर सकते हैं स्नो में and they can swim underwater also. हाउ? उनकी जो नॉस्ट्रल्स होती है, नोज मोस्टली सांस लेने के लिए होती है, बट उनकी जो नॉस्ट्रल्स होती है ना, वो क्या होती है, वो क्लोज हो जाती, वो लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज रख सकते हैं उसको, सो दे कैन ईजिली स्विम अंडर वाटर। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ऑफ पोलर बेयर मेक्स इट पॉसिबल टू लोकेट इट्स प्रे ड्यूरिंग सच हार्श वेदर। वहाँ इतना हार्श वेदर होता है, उस टाइम पे भी उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जिसके वजह से वो अपना शिकार जो है वो ईजिली ढूंढ सकते हैं। Let us have a look at the video to know about the countries of polar regions and the tropical rainforest. हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम इनका देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। Countries of polar region and tropical rainforest. The countries of polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska, Siberia. So these are the countries of polar region. Now let us have a look at the countries of tropical rainforest like India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda, Nigeria. So these are of the rainforest. जो क्लाइमेट होता है पोलर रीजन का वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, वहाँ पर हमेशा स्नो रहती है। इट इज़ ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो, ओके। एंड यहाँ पर आपको दो पोल दिख रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है ये है पोलर रीजन्स। क्लाइमेट जो होता है यहाँ का बहुत ही ठंडा होता है, टेम्परेचर -37 डिग्री तक चला जाता है। अभी हम देख लेते हैं अडेप्टेशंस जो पोलर बियर में है। थिक फर कीप्स बॉडी वार्म इन फ्रिजिड एयर एंड वाटर। वाइट फर हेल्प्स फॉर camouflage in ice and snow and reflects the heat loss through the skin back into its body. ये सब हमने अभी डिस्कस कर चुका है, जस्ट हम वीडियो में देख लेते हैं। ये देखिए, बिग पॉज, ब्रॉड पॉज स्प्रेड बॉडी वेट्स ऑन आइस एंड हेल्प्स इन स्विमिंग। क्लॉज कर्व्ड इन शेप टू डिग थ्रू आइस, आइस में डिग करने के लिए वो हेल्पफुल होते हैं। टीथ जैग्ड स्वीटिंग कार्निवोरस ईटिंग हैबिट, ये कार्निवोरस होते हैं। नॉस्ट्रिल हेल्प्स इन ब्रीथिंग बट आर क्लोज्ड व्हेन इनसाइड वाटर, वाटर के अंदर रहते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं। इनके ईयर्स बहुत स्मॉल होते हैं ताकि इनकी बॉडी में से ज़्यादा हीट लॉस ना हो। सो ये हमने देख लिया हाउ पोलर बेयर में अडेप्टेशन जो है वो कैसा है। नाउ नेक्स्ट इज पेंगुइन्स।
सो पेंगुइन्स आप सबने देखे होंगे टेलीविजन्स में, रियल लाइफ में तो नहीं देखे होंगे, टेलीविजन में देखा होगा, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी चैनल. सो पेंगुइन्स लुक समथिंग लाइक दिस. सो पेंगुइन्स के बारे में पढ़ लेते हैं. पेंगुइन्स आर ऑल्सो वाइट इन कलर सो दैट दे कैन हाइड इन स्नो. जब हमने एग्जाम्पल देखा था तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स जो थे मोस्टली वाइट कलर के थे. अभी उनका ये वाइट कलर जो है क्या उनको हेल्पफुल करता है किस चीज़ में? इस स्नो में खुद को हाइड करने में. पेंगुइन्स हैव थिक स्किन विथ लार्ज फैट कंटेंट इन देयर बॉडी. जो पेंगुइन की स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और उसमें फैट जो होता है बहुत ज़्यादा ही होता है, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द कोल्ड वेदर. उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है ताकि वो इतने कोल्ड वेदर में सर्वाइव कर सके. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पेंगुइन्स आर वाइट इन कलर. पेंगुइन्स आर वाइट इन कलर so that they can hide in the snow. They have thick skin with large fat content to survive in this cold weather. The penguins generally live in crowd or nest closely so that they can stay warm. आपने ये पिक्चर देखा है, यहाँ पर पेंगुइन्स पूरे सारे के सारे कितने पास पास चल रहे हैं ना, वो हमेशा क्राउड में रहते हैं, वो एक तरह से झुंड में रहते हैं ताकि जो है वो अपने आप को गर्म रख सके. The penguins have webbed feet which allows them to swim. Now webbed feet कैसे होते हैं? यहाँ पर एक पिक्चर देख लीजिए आप. ऐसी फीट्स को वेब्ड फीट्स कहते हैं. यहाँ पर जो है फिंगर्स का सेपरेशन नहीं होता है, वो जॉइंट है. ये देखिए ये जॉइंट है ना. These kinds of feet are known as webbed feet. Now let us have a look at the video of penguins adaptation जो अभी हमने पढ़ा है, बस हम एक बार देख लेते हैं. Adaptations of penguins. Penguins are white, helping them to merge well in the snowy background. They have thick skin, a lot of fat which protects them from cold. Penguins huddle together to keep themselves warm. Their bodies are streamlined and their feet have web to easily swim. So ये हो गया penguins का adaptations of penguins. So these are the some of the features which are present in penguins. Next is Siberian crane. So this is how the Siberian crane looks like. These birds are also called as migratory birds. Now you will come to know why these birds are called as migratory birds. Migratory birds in the polar region. The birds, in order to protect themselves from cold region of the winters in the polar region, often migrate from these area to the warmer places. So वहाँ पर जब विंटर होता है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा. वैसे भी वहाँ पर हमेशा ठंडा ही रहता है, लेकिन विंटर्स में तो और भी ज़्यादा हो जाएगा. तो ये जो साइबेरियन बर्ड्स होती हैं ये क्या करती है, वो वहाँ से माइग्रेट हो जाती है, वहाँ से मूव होके उन जगहों पे चली जाती हैं जहाँ पर गर्मी होगी, वो वार्मर प्लेस में चली जाती हैं. ओके, दे देन रिटर्न बैक आफ्टर द विंटर सीजन. और जब वहाँ विंटर ख़त्म हो जाता है तो वापस वो वहीं पर चली जाती हैं, पोलर रीजन्स में ही चली जाती हैं. जब वहाँ विंटर होता है तो वहाँ से कहाँ आ जाती हैं, उन जगहों पे जहाँ पर गर्मी होगी. ओके, गर्म वार्म प्लेस होगी, वहाँ पर वो आ जाती हैं. और जब वहाँ पर ठंडी ख़त्म हो जाती है तो ये वापस से चली जाती हैं अपने पोलर रीजन्स में. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स टू इंडिया इन राजस्थान, हरियाणा एंड सम नॉर्थ ईस्ट रीजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. सो विंटर सीजन के टाइम में जब साइबेरिया में विंटर सीजन होता है तब ये साइबेरियन क्रेन जो होती हैं वो इंडिया में आती हैं और ये ज़्यादातर आपको राजस्थान, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखने को मिलेंगी. ओके, दीज बर्ड्स दैट माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग अ चेंज इन वेदर आर ऑफन कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड. सो ये जो बर्ड्स हैं ये माइग्रेट हो रही हैं, जब सीज़न चेंज होता है तब ये माइग्रेट होके वेदर चेंज होने के कारण ये माइग्रेट हो रही हैं, दूसरी प्लेस में जा रही हैं, तो इसलिए इन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं. दे कैन ट्रैवल फॉर about
15,000 किलोमीटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट। ये 15,000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं अपने आप को कोल्ड टेम्परेचर या इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। सच बर्ड्स माइग्रेट टू सेम प्लेसेस एवरी ईयर। अब ये बर्ड्स जो हैं ऐसा नहीं है कि हमेशा अलग अलग जगह जाती हैं, ये हमेशा माइग्रेट होके सेम प्लेस में ही आती हैं। तो साइबेरिया में जब भी विंटर होगा तो ये बर्ड्स हमेशा राजस्थान में, हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट polar regions and the animals of polar adaptation of animals of polar region. Now let us have a look at the climate of tropical region. Tropical rain forest में कैसा climate होता है? So tropical equator part में आता है ये tropical region। मोस्टली यहाँ पर जो जनवरी में होता है वो टेम्परेचर कम से कम होगा, तो कितना होगा? जनवरी में 15 डिग्री तक होता है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर समर में होता है जो कि होता है 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो जनवरी में कम सबसे हायर टेम्परेचर जो होगा वो होगा 15 डिग्री, और समर्स में 45 डिग्री तक चला जाता है। अब यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। द रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो द व्हाट आर द प्लेसेस? सेंट्रल अमेरिका रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, असम हो गया, सेंट्रल अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। दीज आर सम ऑफ द रीजन्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स मिल जाएंगे देखने के लिए। आप यहाँ पिक्चर्स में ही देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कितने सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। एलिफेंट है, डियर है, लायन है, टाइगर है, मंकीज हैं, स्नेक है, टोकन है। इट इज़ अ बर्ड। ओके, सो नाउ let's have a look at let's study about tropical rainforest. Tropical rainforest. The tropical region on the earth are the regions which are close to the equator and hence receive more amount of sunlight during the year. ये इक्वेटर के पास होते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। Because of this, these areas have a hot climate. तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? यहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है। The temperature in the tropical regions can be as high as 40 degree Celsius and can drop until 15 degree Celsius only. So ये 40 डिग्री 45 डिग्री जितना हाई हो सकता है, and it can drop up to 15 degree Celsius. Okay. The length of the day and the night are almost equal in these regions. यहाँ पर दिन और रात का जो लेंथ है वो equal होता है। However, there is lot of rainfall and so the tropical rainforests are found in these region. What are the region? Many animals. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, क्लाइमेट वहाँ का हॉट है और वहाँ पर बारिश भी हो रही है। Many animals have adapted themselves so that they can survive on the trees and find their food easily. So क्योंकि वहाँ बहुत बारिश हो रही है तो बहुत सारे एनिमल्स ने खुद को ऐसा अडेप्ट कर लिया है so that they can survive, they can live on the trees and वहाँ पर वो अपना easily food find कर सकें। Skin color of these animals is generally similar to that of the surroundings so that they can catch their prey easily and protect themselves from the predator. लाइक पोलर रीजन में स्किन कलर वाइट होता था ताकि वो ईज़िली अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकें और अपने प्रे को कैच भी कर सकें। सिमिलरली यहाँ पर भी जो एनिमल्स होते हैं उनका स्किन कलर उनकी सराउंडिंग से मैच होता है ताकि वो क्या कर सके, ईज़िली खुद को प्रोटेक्ट भी कर सके प्रेडेटर से और अपने प्रे को भी ईजिली कैच कर सके। मैनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव अ गुड आईसाइट एंड बेटर सेंस ऑफ हियरिंग। जो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं इनकी आईसाइट बहुत अच्छी होती है और इनका हियरिंग सेंस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो लेट अस नाउ हैव अ लुक एट द डिफरेंट एनिमल्स विच आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और उनका जो अडेप्टिव फीचर है, जो फीचर उनको हेल्प कर रहा है वो फीचर हम देखेंगे बस। सो द फर्स्ट वन इज़ हेयर रेड आइड फ्रॉग। ये लाल आँखों वाला मेंढक जो होता है
उसका अडेप्टेशन हम देखते हैं. इट हैज़ अ स्टिकी फीट सो दैट इट कैन क्लाइंब अप ऑन द ट्रीज ईजली. ये जो फ्रॉग्स होते हैं इनकी जो फीट्स होते हैं ये स्टिकी होते हैं ताकि ये ट्रीज में ईजली क्लाइंब कर सके. नेक्स्ट इज मंकीज. दे हैव लॉन्ग टेल. मंकी आप सभी ने देखा होगा. they have long tails so that they can climb the trees easily. so monkeys की tail बहुत लंबी होती है ताकि वो easily trees में climb कर सके. उनके hands और feet का structure ऐसा होता है कि वो बहुत easily branches को hold कर सकते हैं. आपने देखा होगा बंदरों को वो कैसे एक डाल से दूसरी डाल तक कितने easily चले जाते हैं. This is their adaptive feature. They have long tails so that they can climb the trees easily. Even their hands and feet have a structure that helps them in holding the branches of the tree easily. Next is toucan birds. Now these birds adapt themselves so that they can find food easily. अब इनका adaptive feature क्या है? ये birds ने खुद को ऐसे adapt किया है कि ये अपना खाना जो है बहुत ही easily ढूंढ लें. The toucan bird have a large and long beak. यहाँ देख रहे हैं ये वाली जो birds हैं इनकी beak जो है बहुत ही ज़्यादा large है, long है, with which it can reach the food that is found on weaker branches as well. Now अभी हर ब्रांच पे तो चिड़िया बैठ नहीं सकती, जो वीक ब्रांच होंगे उस पर वो नहीं बैठ पाएगी. तो इनकी जो बीक इतनी लंबी होती है कि वो एक जगह से बैठ के कहीं दूर अगर उनका फूड है तो वो उसको ले सकती है. सो देयर अडेप्टिव फीचर इज देयर लॉन्ग बीक. Lions and tigers. Lions and tigers. They have thick skin, sharp eyesight and sensitive hearing. इनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है. इनकी आईसाइट बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है. वो बहुत दूर से ही अपना शिकार देख लेते हैं. और उनकी ईयरिंग जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है. वो छोटे से छोटे साउंड को बहुत ही ईजिली सुन लेते हैं. द येलो ब्राउन कलर ऑफ लायन एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑफ टाइगर helps them to hide in the forest by blending with the surrounding. so इनके बॉडी में जो इनका जो स्किन का कलर होता है वो ऐसा होता है कि ये ईजिली अपनी जो सराउंडिंग है उसमें आराम से मिल जाए और किसी को पता ना चले कि वो वहाँ पर है. और इससे क्या होता है ये अपने प्रे को पकड़ने, अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये बहुत ही इनके लिए हेल्पफुल हो जाता है. नेक्स्ट इज एलिफेंट्स. ओके, एलिफेंट्स तो सबने देखे होंगे. एलिफेंट्स सो एलिफेंट्स में क्या क्या होते हैं अडेप्टिव फीचर? इट्स ह्यूज ट्रंक गिव्स इट अ नाइस सेंस ऑफ स्मेल एंड हेल्प्स इन पिकिंग द फूड ईजली. आप सबने देखा होगा एलिफेंट जो है वो अपना खाना जो है ट्रंक से उठाता है. ओके, अब ये ट्रंक में इसका सेंस ऑफ स्मेल भी अच्छा होता है और ये खाने को उसका जो फूड होता है उसको उठाने के लिए हेल्पफुल होता है. द एलिफेंट ईट्स द बार्क ऑफ द ट्री. एलिफेंट जो है बार्क को, ट्रीज के बार्क को भी खाता है. तो अब ये बार्क को खाने के लिए उसके पास क्या होते हैं? अब वो बार्क को कैसे खा पाता है? जो टस्क होते हैं, जो कि लार्ज टीथ होते हैं एनिमल के, जो हमने देखे होंगे, अलाउ इट टू क्लियर द बार्क ऑफ द ट्री. अभी ये इन टस्क की हेल्प से ये ट्रीज के जो बार्क हैं उसको क्लियर कर देता है, जिसके वजह से वो उसे भी खा सकता है ना. टस्क की हेल्प से वो बार्क को क्लियर कर देता है और वो बार्क को भी खाता है. The large ears of elephants allow it to hear sensitive sounds that make it easier for it to protect itself from the predator. Elephants के कान देखे हैं आपने कितने बड़े होते हैं ना जी. एलिफेंट्स के जो कान होते हैं उनकी हियरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है. सो वो दूर से ही उनको थोड़े से भी साउंड से पता चल जाता है और वो खुद को जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रेडेटर से. जो उनको शिकार करने आ रहा है वो उनसे खुद को बचा लेता है, क्योंकि उनका जो ईयर्स होता है, उनका जो हियरिंग सेंस है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है. प्लस उनका ईयर्स जो है वो उनको और किस चीज़ में हेल्प करता है? इट प्रोटेक्ट्स द एलिफेंट फ्रॉम द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट जो है हॉट एंड ह्यूमिड होता है. सो ये जो ईयर्स जो होते हैं वो उनको कूल रखने में हेल्प करते हैं. हियर यू कैन सी दिस इज टस्क, दिस इज ट्रंक. द ईयर्स ऑफ द एलिफेंट्स आर large and they helps to protect the elephant from the hot and the humid climate. These large ears helps the elephant to keep itself cool. उसकी बॉडी को कूल रखने में ears बहुत ही हेल्पफुल
होते हैं. Okay students, so we are done with this chapter. I hope you understood what is climate, what is weather, how the animals of different regions adapt themselves to the different climate. Thank you so much for watching.